Good morning, everyone. Good morning, Dheerji. Good morning, Neelamji. How are Good you morning, doing? sir. Good morning. How are you doing? Good morning, sir. Good morning. You're doing fine? You're doing great? Yes, sir. Always great. Always great. Oh, that's a great message that one can give to oneself. Always great, always motivated. So, with that motivation, were you able to do your homework? That's the bigger question. Yeah, Dheerji, what is your response? Were you able to do your homework? Were you able to work on tenses a little bit on we saw some tenses yesterday. If you remember, we talked about simple present tense. We did talk about present continuous. Do you got time to work on them a little bit? You did? Neelamji, did you get time? Good morning, sir. Good morning. Your smile says it all. So there is something that goes beyond our words. That's called, that's we call it beyond the words. So when you don't say anything, but your gestures they do say something. So that is something that we can understand. So not a problem. We'll carry on with our class now. So if you remember, yesterday we started working on the tenses, and we started to work on simple present tense. Then we saw present continuous. Any questions for that, Dheerji, Neelamji? If you have any questions for that, clear है आपको अच्छे से? चलिए, wonderful. We'll quickly move ahead, and we will see in today's class. If you remember this list that I had shown you, ये जो list है, that's very important because it talks about the main verb, which is called the infinitive form. Then you have second form. Then you have got the third form. Then you have the ing form, and of course the Hindi translation for you. And similarly, we saw some other verbs which are not always regular, and for them you have to memorize well the second form and the third form. So you see it over here. You have got the verbs, then you have got the second form, then you have got the third form, and then you have the ing form. All right, moving ahead, I'll quickly ask you some questions based on present tense, and let's see if you're able to do it. Okay, so Dheerji, how do you say this? वो टीवी नहीं देखता है. He does not see TV. Right, but he doesn't watch TV, right? We use the verb to watch for television, right? So he doesn't watch TV, he doesn't watch television, right? आप बताइए नीलम जी, क्या वो गाती है? क्या वो गाती है? Does she sing? Very good. Does she sing? Does she sing? क्या वो गाती है? तो आपने जवाब दिया धीर जी, नहीं वो नहीं गाती है. She does not sing. Exactly. She doesn't sing. She does not sing. Absolutely. ये चीज आपको क्लियर है. इसमें कई बार हम क्वेश्चन वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं. वो आपको दिखाता हूं कैसे. ओके. वो कैसा गाती है? वो कैसा गाती है? सो हाउ डज शी सिंग? वो कब गाती है? When does she sing? Right? When. So आप ये क्वेश्चन वर्ड जब आप फर्स्ट पेज पे लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन इसी प्रकार से चलेगा. हाउ डज शी सिंग? वो कैसा गाती है? और शी सिंग्स वेल, शी सिंग्स ग्रेट, शी सिंग्स वंडरफुली वेल, राइट? समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. या व्हेन डज शी सिंग? क्या मतलब है इस क्वेश्चन का धीर जी? व्हेन डज शी सिंग? वह कब गाती है? वह कब गाती है? व्हेन डज शी सिंग? एनी आंसर फॉर दैट धीर जी? व्हेन डज शी सिंग? She is sing in evening. हाँ, पर आपने शी के बाद सिंग क्यों लगाया? आपको बोलना शी सिंग्स इन इवनिंग. शी सिंग्स, राइट? हमें ध्यान रखना है कि हम जब सेंटेंस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो हमारे कंस्ट्रक्शंस को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे. शी सिंग्स इन द इवनिंग, राइट? शी सिंग्स इन द इवनिंग और शी सिंग्स इन इवनिंग, राइट? एंड इस सवाल का मीनिंग देख लेते हैं. नीलम जी आप बताइए, इसको पढ़ दीजिए इस प्रश्न को. Why does she sing? हाँ, क्या मतलब है इस प्रश्न का? व्हाई डज शी सिंग? वह क्यों गाती है? हाँ, वो क्यों गाती है? एनी रीजन बताइए. व्हाट कैन बी द रीजन? She sings for enjoy. Okay, she sings for enjoyment. She sings for enjoyment. For के बाद हम हमेशा हमारे नाउन को, क्रिया को लगाते, I'm sorry, नाउन को लगाते हैं, संज्ञा को लगाते हैं, राइट? So she sings for enjoyment. वो आनंद के लिए गाती है, वो मजे के लिए गाती है.
या फिर अगर ये हमें आंसर देना होता धीर जी, वो गाती है क्योंकि उसे पसंद है, वो गाती है क्योंकि उसे पसंद है, तो क्या जवाब देंगे आप धीर जी? She likes to sing. ओके, शी लाइक्स टू सिंग, शी लाइक्स इट, लेकिन इससे पहले शी सिंग्स, she sings because she likes it, she sings because she likes it, वो गाती है क्योंकि उसे पसंद है, ये है। ठीक है, क्लियर है आपको, समझ में आ रहा है? सो यू कैन ऑलवेज हैव दीज क्वेश्चन वर्ड्स हाउ, व्हेन, व्हाई, ये इनके साथ जुड़ के आएंगे, तो हम उत्तर जो है उसके अंदर एक स्पेसिफिक आंसर ढूंढ के देंगे हमारे जो भी क्वेश्चन पूछने वाले व्यक्ति को। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड क्विकली, लेट्स सी। देन वी सॉ समथिंग कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं थोड़ा सा इसको छोटा ही रखता हूं ताकि मैं आपसे फटाफट सवाल पूछता हूं, आपके आंसर सुनता हूं। नीलम जी आप बताइए, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, मैं किताब पढ़ रहा हूं, हाउ डू यू से दैट इन इंग्लिश? I'm reading a book. आई एम रीडिंग अ बुक, राइट? इसको आप अ पढ़ेंगे ना कि ए। अ एक जनरल सेंस में होता है और ए होता है एक किताब, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, राइट? तो जो ए का साउंड हम देते हैं, हम तब देते हैं जो आपने उत्तर दिया आई एम रीडिंग ए बुक, जब किसी ने पूछा कितनी किताबें पढ़ रहे, आई एम रीडिंग ए बुक, उस स्थिति में जब हम एक का फील देना चाहते हैं। अन्यथा हमें क्या बोलना है? आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, राइट? तो ए और अ में फर्क होता है। चलिए आप ट्राई कीजिए। ओके, ये वाला सवाल ठीक है। धीर जी आप बताइए, वो टीवी क्यों नहीं देख रहा है, वो टीवी क्यों नहीं देख रहा है? Why he does not watching TV? हाँ, अब देखिए बहुत सारे शब्द आगे बीच में, तो आपकी वो वाक्य की संरचना थोड़ी ऊपर नीचे हो गई। हाँ, वाई, क्यों, वाई, वो टीवी क्यों नहीं देख रहा है, देख रहा है मतलब आईएनजी वाला है, ठीक है? तो आप क्या लगाएंगे? Why वाई, is he ठीक है, वो देख क्यों नहीं रहा है, हम नेगेटिव में बोल रहे हैं। isn't वेरी गुड, वाई इजंट ही, watching TV? Absolutely. Why isn't he watching TV? Why isn't he watching TV? वो टीवी क्यों नहीं देख रहा है? Why isn't he watching TV? इतना ही बोर हो रहा है तो ask him to watch television. नहीं, वो नहीं देख रहा है, but why isn't he watching TV? वो क्यों नहीं देख रहा है टीवी, राइट? ये क्वेश्चन होगा हमारा। चलिए, okay, so let's move ahead now. I wanted to make one more. Let's use this. Okay, आप ट्राई कीजिए नीलम जी। तुम गाना क्यों नहीं सुन रहे हो, तुम गाना क्यों नहीं सुन रहे हो? तुम गाना क्यों नहीं सुन रहे हो? Why aren't you listening song? Why aren't you listening to song? बिल्कुल ठीक है। Why aren't you listening to song? Why aren't you listening to song? बिल्कुल ठीक है। तुम गाना क्यों नहीं सुन रहे हो? कई बार हम लिसनिंग के बाद टू लगाते हैं, कई बार टू नहीं लगाते। ये सिंपल सा रूल है, अगर आप उस चीज पे बहुत फोकस, ध्यान केंद्रित करके उस चीज को सुनेंगे तो टू लगाएंगे, और बड़ा कैजुअल जनरल भी होगा तो लिसनिंग के साथ हम म्यूजिक, हम जनरली इसको देखते हैं आई लिसन टू म्यूजिक, आई लिसन म्यूजिक, इस प्रकार से हम बोलते हैं। तो लिसन टू लगाते हैं जब हम बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं, अन्यथा कैजुअल वे में आई लिसन म्यूजिक, दोनों ठीक है। देखो सामने वाले को नहीं पता कि आपका क्या अप्रोच है, क्या एटीट्यूड है म्यूजिक को लेके। सो आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है, व्हाई आरंट यू लिसनिंग टू म्यूजिक, व्हाई आरंट यू लिसनिंग टू सॉन्ग, ठीक है। ऑलराइट, यहां तक क्लियर है आपको धीर जी, नीलम जी, इज इट ओके? राइट, लेट्स मूव अहेड because we have to move ahead today for something that but I'll quickly ask you some questions. चलिए इसको ट्राई करते हैं, मैं हिंदी में आपको दूंगा वाक्य, आपको बनाने हैं इसको अंग्रेजी में। धीर जी आप बताइए, मैं बाजार नहीं जा रही हूं, I'm not going to market. आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, ठीक है। नीलम जी आप बताइए, मैं अब उससे बात नहीं कर रहा हूं, मैं अब उससे बात नहीं कर रही हूं या कर रहा हूं। I'm not talking to him now. ओके,
I am not talking to him now भी ठीक है और एनी मोर भी ठीक है, निर्भर करेगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मैं इस क्षण उससे बात नहीं कर रहा हूं, राइट? मैं बात करता हूं उससे, कर भी लूंगा बाद में, पर अभी मैं व्यस्त हूं। सो आई एम नॉट टॉकिंग टू हिम नाउ, आई एम नॉट टॉकिंग टू हिम नाउ इस क्षण, बट मैं अब उससे बात नहीं कर रहा हूं, यानी अब से मैंने तय कर लिया कि मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं, राइट? आई हैव डिसाइडेड इट। तो उस सेंस में आ जाएगा एनी मोर, नो लॉन्गर, राइट? क्लियर है आपको? तो अब कई बार हम अब को दोनों रूप में समझने में कई बार मुश्किल होती है हिंदी में। अब मतलब इस क्षण, या अब तो मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं, यू नो, अब तो लगाते हैं या अब बोलते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर अब का सेंस है तो इस क्षण है तो नाउ, जो आपने कहा सही है, अन्यथा एनी मोर, अब मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज इतना ट्राई कर लिया, वो जवाब नहीं दे रहा है, अब मैं उससे बात नहीं कर रहा। तो वही वाक्य किस फील में आप कह रहे हैं, इट विल डिपेंड, विल इट बी नाउ और विल इट बी एनी मोर। चलिए, let's move ahead. Let's go to our next sheet. Okay. So हमने आपके साथ did we already do present perfect? क्या हमने present perfect कल देख लिया था? मैंने खा लिया है, उसने बता दिया है, have और has के साथ हमने देख लिया था। इसके क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। चलिए, तो अब आपने हाँ बोल दिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप बताइए धीर जी, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है। If you haven't done so, you'll say मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है। कैसे बोलेंगे इसको? I haven't done my work yet. हाँ, I haven't finished, I haven't done my work yet. ठीक है, करेक्ट है। चलिए, आप बताइए नीलम जी, क्या तुमने सीमा से बात कर ली है? क्या तुमने सीमा से बात कर ली है? Have you talked, have you talked to Seema? परफेक्ट। हैव यू टॉक्ड टू सीमा? हैव यू टॉक्ड टू सीमा? और इस व्यक्ति ने उत्तर दिया, नीलम जी आप भी बताइए, मैंने अभी तक सीमा से बात नहीं की है। I have, I have not talked to Seema. हाँ, I have not yet, I haven't yet talked to Seema. Right? I have not, या I haven't yet talked to Seema. Clear है? ये आपको बोलना है, बिल्कुल ठीक है। By चलिए, now, we can use by now. by now, Except yet की जगह instead of, yeah, right? So आप कहना चाह रहे हैं instead of yet can we use by now? नहीं, by now तो होता है अब तक, by now अब तक। तो आप कहना चाहेंगे कि by now you should have completed your work, by now you should have completed your work। उस केस में by now था, अभी तक तो तुम्हें तुम्हारा काम खत्म कर लेना चाहिए था, by now, राइट? बाय नाउ में हमेशा जनरली कोई ऐसी बात होती है जो हुई नहीं होती है। बाय नाउ, अभी तक तो हिंदी में भी आप बोल के देखिएगा कि अभी तक के साथ वही सेंटेंस आता है जो हुआ नहीं होता जनरली, राइट? बाय नाउ, या वो पहुंच गए होंगे, बाय नाउ दे मस्ट हैव रीच्ड, बाय नाउ अब तक तो वो पहुंच गए होंगे। सो आपके केस में, इस केस में हम लगाएंगे येट, आई हैवंट येट स्पोकन टू सीमा, आई हैवंट येट टॉक्ड टू सीमा। ऑलराइट, एक क्वेश्चन देखते हैं, धीरज जी आप बताइए, क्या वो समस्या समझ गई है? क्या वो समस्या समझ गई है? जो मेरी समस्या है या उसकी जो समस्या थी किसी थर्ड पर्सन की, उसको वो समझ गई है क्या? क्या वो समस्या समझ गई है? Does she understand the problem? Has she dash 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 the problem? हाँ, क्या भरेंगे इसके अंदर? टू अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? understood. अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, मुख्य क्रिया अंडरस्टैंड, उसका सेकंड फॉर्म भी अंडरस्टूड और थर्ड फॉर्म भी अंडरस्टूड, राइट? नीलम जी करेक्ट बोला आपने। हैज शी अंडरस्टूड द प्रॉब्लम? क्या वो समस्या समझ गई है? तो आपने जवाब दिया नहीं, वो समस्या अभी तक नहीं समझी है। नीलम जी, वो अभी तक नहीं समझी है समस्या, उसको इतना बता दिया, बट She has not understood the problem. या शी hasn't yet understood the problem. Yes, she has not, आपने सही बोला, she has not yet understood the problem, she hasn't yet understood the problem. ठीक है? ओके ओके, एक और ट्राई करते हैं, एक दो प्रश्न बनाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे नए वाले टेंस के साथ आज।
नीलम जी आप बताइए, क्या उन्होंने ताजमहल देख लिया है? क्या उन्होंने ताजमहल देख लिया है? Have they seen Taj Mahal? राइट, हैव दे सीन ताजमहल? सीन बिल्कुल देखने के हिसाब से होता है, लेकिन अंग्रेजी में शायद हम विजिट यूज कर लेंगे, यानी उसको देख लिया है बोलते हैं। क्या वो मतलब उन्होंने वहां पे घूमा है, क्या वो देख लिया है, तो हम क्या वर्ब काम मिलेंगे, हैव दे विजिटेड। हैव दे विजिटेड ताजमहल। तो आपको एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अच्छी बात है कि आप टेंस को समझ गए हैं, आपको उसको बोलना आता है, पर धीरे धीरे आप प्रयास कीजिएगा कि आप सही क्रियाओं का प्रयोग करें। बिकॉज हैव यू सीन ताजमहल, तो आपकी शायद मन की इच्छा ये थी कि तुम घुमाए हो क्या ताजमहल, तुमने ताजमहल देख लिया, क्योंकि हम ये बोलते हैं हिंदी में, ताजमहल देख लिया क्या आपने, ताजमहल घुमाए क्या आप, ताजमहल घुमाए क्या आप, इस प्रकार से बोलते हैं। तो घूम आना, देख आना, तो अंग्रेजी में हो जाएगा टू विजिट। सो हैव यू विजिटेड ताजमहल, राइट, या हैव दे विजिटेड ताजमहल। तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे। चलिए, ये क्लियर है आपको? मुझे लगता है दो हमने टेंसेस बहुत डिटेल में देख लिए हैं, वो है सिंपल प्रेजेंट और फिर हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। हैव यू अंडरस्टूड? धीर जी, हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. We have understood. हाँ, आपने तो दोनों के लिए बोल दिया वी हैव अंडरस्टूड, तो चलिए अच्छा काम किया आपने। सभी का एक साथ आ गया आंसर, वी हैव अंडरस्टूड, राइट, देयर इज नो मोर कंफ्यूजन अबाउट इट। चलिए, सो वील क्विकली मूव अहेड एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट वन एंड द टेंस इज, राइट, दिस इज गोइंग टू बी या सिंपल पास्ट। चलिए, सिंपल पास्ट। अब देखिए, सिंपल पास्ट नाम भी इसका सिंपल है, तो बड़ा सिंपली ये बनता है। इसमें आपको क्या करना है, आप अपनी लिस्ट को याद कीजिए, उस लिस्ट में हमारा एक सेकंड फॉर्म हुआ करता था, राइट। उस सेकंड फॉर्म को पकड़ना है आपको, और सब्जेक्ट प्रोनाउन को पकड़ना है। आई के साथ सेकंड फॉर्म, यू के साथ सेकंड फॉर्म, ही सेकंड फॉर्म, शी सेकंड फॉर्म, इट सेकंड फॉर्म, वी सेकंड फॉर्म और दे सेकंड फॉर्म। इतना आसान है। सेकंड फॉर्म सुन लेते हैं आपसे, देखते हैं कितनी आपको सेकंड फॉर्म्स याद हैं। चलिए, आप बताइए धीर जी। टू ड्रिंक, कोई पेय पदार्थ आप पीते हैं, उसकी आप क्रिया है टू ड्रिंक। सेकंड, थर्ड, ड्रिंक, ड्रैंक, Drink, हाँ, drunk, राइट, या ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, drunk, ड्रिंकिंग। drinking. चलिए, आप ट्राई कीजिए नीलम जी, टू स्पीक बोलना। Speak, spoke, spoken, speaking. वेरी गुड, टू स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, बिल्कुल। ये अगर आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे ना, तो आपको बहुत आसानी से आप बोल पाएंगे। एक दो और ट्राई करते हैं फटाफट, आप ट्राई कीजिए धीर जी, टू सिंग। Sing, sang, sung, singing. एग्जैक्टली, सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग। और एक आपके साथ लास्ट ट्राई करते हैं नीलम जी, आप बताइए, टू बाय, खरीदना, टू बाय। Buy, bought, bought, buying. वेरी गुड, टू बाय, बॉट, बॉट, बाइंग। बॉट की स्पेलिंग BOUGHT, बॉट, खरीदना। और एक आखिरी, बिकॉज कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, धीर जी आप ट्राई कीजिए, टू ब्रिंग, लाना, टू ब्रिंग। Bring, brought, brought, bringing. वेरी गुड, टू ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग। एग्जैक्टली, अगर आपको याद होंगे तो बड़ा आसानी से आप कर पाएंगे। तो इसमें क्या करना होता है, सिंपल पास्ट। पहले इसको समझते हैं होता क्या है, ये कैसे फर्क आता है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट से। प्रेजेंट परफेक्ट जब आप कहते हैं तो आप कहते हैं मैंने खा लिया है, मैं समझ गई हूं, मैंने देख लिया है। और जब आप सिंपल पास्ट बोलना चाहते हैं हिंदी में, तो आप इस प्रकार के वाक्य बोलेंगे, मैंने देखा, कल मैंने देखा, राइट, परसों मैंने पढ़ा, आज सुबह हमने खाया। तो इस प्रकार के वाक्य आप बोलते हैं, खाया, देखा, पढ़ा, लिखा, सुना, राइट। इस प्रकार की एंडिंग्स होती है। आप इसमें है का भाव या है का जो सेंस है वो नहीं लेके आते। फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट से मैंने पढ़ लिया है, मैंने देख लिया है, राइट। ये अभी शुरुआती समय में हम हिंदी की बहुत एक हेल्प लेंगे, ताकि हम समझ पाएं कि किस समय क्या बोलना है। धीरे धीरे आप अपने आप कंफर्टेबल हो जाएंगे और आप अपने आप ही उसको कर पाएंगे अंग्रेजी में। तो हमें क्या करना है, हमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म, जिसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं, वो लगाना है। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जनरली हमें रखना आवश्यक होता है, तभी हम उस पूरे वाक्य का सेंस बना पाते हैं। चलिए, सो मैं संग्रहालय गया, मैं संग्रहालय गया, आई विजिटेड द म्यूजियम, आई विजिटेड द म्यूजियम, या फिर आई वेंट टू द म्यूजियम। समझ में आता है आपको? आई वेंट, टू गो, वेंट, गॉन, गोइंग, ये हमें ध्यान है।
सो आई वेंट टू द म्यूजियम। इसका क्या फील आता है हिंदी में? मैं संग्रहालय गया। कब? कल। कब? आज सुबह। आज सुबह मैं संग्रहालय गया, कल मैं संग्रहालय गया। आप ये नहीं कहोगे हिंदी में मैं संग्रहालय गया हूं, दैट विल नॉट मेक सेंस एट ऑल। ऑलराइट, चलिए अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं। जिस प्रकार से आपको याद है कि जब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखा था तो मैंने आपको कहा था कि आई ईट को हम आई डू ईट भी बोलते हैं, शी ईट्स को हम शी डज ईट भी बोलते हैं। आपको याद है? ये चीज आपको अच्छे से याद होगी, राइट? ये डू और डज लगता था सिंपल प्रेजेंट में। उसी प्रकार से सिंपल पास्ट के अंदर एक शब्द है, मैं यहां पे लिख देता हूं सिंपल पास्ट, वो शब्द है डिड। वो डिड लगाकर भी आप अपना सिंपल पास्ट बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए आई एट, यू sang, they let me do it, yeah, you sang, she cooked, he spoke, let's take we wrote, हमने लिखा, और अंत में they, let's take they drank, right? I ate, मैंने खाया, you sang, तुमने गाया, she cooked, उसने पकाया, he spoke, उसने बोला, we wrote, हमने लिखा, और अंत में they drank, उन्होंने पिया। यहां तक क्लियर है आप सभी को? ठीक है। अब इसी चीज को आप सिंपल पास्ट की चीज को आप did लगाकर भी कर सकते हैं। I, you, he, she, we और they। आपको करना क्या? आपको सब जगह did और did लगाना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से do और does लगाने पर आपको मुख्य क्रिया को वापस लाना पड़ा था, उसी प्रकार से did लगाकर आप यहाँ पे मुख्य क्रिया वापस ले आएंगे। तो आप ट्राई कीजिए नीलम जी। I ate का समानार्थी क्या होगा? I did eat, वेरी गुड, I did eat, बिल्कुल मैंने खाया, I did eat। नीलम जी आप ही कैरी ऑन करिए शुरुआत के 3। You sang का क्या हो जाएगा? sing, You did, sing, हाँ you did sing, बिल्कुल तुमने गाया। नेक्स्ट, she did cook, she did cook, बिल्कुल उसने पकाया, she did cook। चलिए नेक्स्ट सीन आप ट्राई कीजिए धीर जी। She did sing. I think I mixed it up. I think Speak. yeah, speak का बता देते हैं। तो ये यूं कर देते हैं, इसका यहाँ हो गया और इसका यहाँ हो गया। तो मैं यहाँ पे एक बार चेंज कर देता हूँ, इसको मैं हटा के लिख देता हूँ, he did speak कर लेते हैं। ओके, और अब आपने कहा she did cook, बिल्कुल उसने पकाया, she did cook। और we के साथ Right. We did right. we did write, हमने बिल्कुल लिखा, we did write। और अंत में they did drink, राइट? थोड़ा सा अटपटा लग सकता है आपको कानों में कि ये क्या है साउंड, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो तरीका है ये did के साथ आपको बोलने का है। सो I ate, I did eat, you sang, you did sing, she cooked, she did cook, he spoke, he did speak, we wrote, we did write, और अंत में they drank, they did drink। ठीक है, did लगने से हम हमेशा आपस से प्रेजेंट आई मीन इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब या ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब में चले जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए एक दो आपसे पूछ लेता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस और हो जाएगी। आप ट्राई कीजिए नीलम जी, आपको बोलना है इसका did के साथ I understood, understand, I did understand, वेरी गुड। धीर जी आप ट्राई कीजिए। I went, I did go. I did go, बिल्कुल मैं गई थी, I did go, मैं बिल्कुल गई थी बोलते हैं। देखिए इसलिए यहाँ पे आपने देखोगे यहाँ पे था लगा हुआ था, यहाँ पे जो मैंने काटा वो इसलिए क्योंकि हिंदी के अंदर बिल्कुल अनुवाद करना एग्जैक्ट बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। इसमें जितना होगा एक बार आपकी स्कैफोल्डिंग स्ट्रेंथनिंग के लिए समझाऊंगा, बाद में तो आप लिबर्टी है आपकी, कैसे भी बोलें हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, सो आई डिड गो, मैं गई थी, मैं गई, बिल्कुल गई वहां पे, आई डिड गो। ओके, आप ट्राई कीजिए नीलम जी। ये हो गया आपके लिए आई बॉट, I did bring, I did buy, आई डिड बाय, बिल्कुल मैंने खरीदा, आई डिड बाय। ओके, और लास्ट आपके लिए आप बताइए धीर जी, आपको बताना है शी सॉ, उसने देखा, शी सॉ, She did see. शी डिड सी, बिल्कुल उसने देखा, शी डिड सी। वो कह रहे हैं कि नहीं उसने किसी को नहीं देखा, बिल्कुल मैं कह रही हूँ ना उसने देखा था, शी डिड सी। ये डिड का और नॉर्मल में फर्क ये होता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस देना होता है, दैट्स इट।
अदरवाइज देयर इज नॉट मच ऑफ डिफरेंस, यू कैन यूज देम इंटरचेंजेबली। पर ये वाले जनरली हम स्ट्रेस देने के लिए काम में लेते हैं, स्ट्रेस देने के लिए। बिल्कुल मैंने खाया था, बिल्कुल मैंने खाया, आई डिड ईट। नहीं नहीं शायद तुमने नहीं खाया, अरे भाई आई डिड ईट, राइट, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एट, आई डिड ईट, स्ट्रेस दे सकते हैं। चलिए यहां तक क्लियर है आपको? यू अंडरस्टूड, यू अंडरस्टूड, तो आप क्या जवाब देंगे? I did understand. आई डिड अंडरस्टैंड, ठीक है, आई डिड अंडरस्टैंड या फिर यस आई अंडरस्टूड। लेकिन जनरली क्या होता है कि जब ये वर्तमान में चलता है ना, तो हम इसको अवॉइड करते हैं सारे टेंस को। इससे आपके साथ प्रैक्टिस करनी थी मुझे, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे ये नहीं बोलता, मुझे क्या बोलना चाहिए, हैव यू अंडरस्टूड, तब बेहतर होता, क्योंकि समझ में आ चुका है, वर्तमान में आए हैं ना, इस वजह से इसका पोजीशन पास्ट में, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगर ये समझ में आ गया है तो काफी हमारे हद तक काम बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि हमें जब नेगेटिव करना है, आई गो बैक टू दैट शीट, यहाँ पे हमें दिखेगा कि जब हमें नेगेटिव करना होता है तब हमें डिड की आवश्यकता पड़ती है और डिड के साथ नॉट लगाना पड़ता है। सो हमें पहले ही समझ में आ जाना चाहिए कि पॉजिटिव के अंदर भी डिड लग सकता है, तो फिर क्या होगा, इजी पड़ता है हमारे को नॉट लगाना, डिड नॉट। सो डिड नॉट को कई लोग DIDNT लिखते हैं, जिसको डिडंट पढ़ते हैं अमेरिकन स्टाइल में और ब्रिटिश स्टाइल में डिडंट। तो आपको जो पिक करना है पिक कर लीजिएगा। लार्जली वी हैव हर्ड कि हम लोग अमेरिकन स्टाइल में बोलते हैं डिडंट, डिडंट, एंड अदरवाइज आई डोंट रिफ्यूट द फैक्ट दैट यू कैन आल्सो से डिडंट, बट इट्स बेटर टू से डिडंट, डिडंट, राइट, डिडंट करके बोलेंगे आप। सो डिडंट या डिड नॉट दोनों सही हैं। सो मैंने नहीं खाया, बताइए आप कैसे ट्राई करेंगे नीलम जी, मैंने नहीं खाया? I did not eat. वेरी गुड, आई डिड नॉट ईट, अन्यथा आई डिडंट ईट, मैंने नहीं खाया, आई डिडंट ईट, DIDNT, राइट, इस तरीके से आप बोलेंगे। चलिए आप बताइए धीर जी, कल वो स्कूल नहीं गई, कल वो स्कूल नहीं गई। Didn't go to school. Exactly. Yesterday she didn't go to school. Yesterday she did not go to school. Right? She didn't go to school. She did not go to school. बिल्कुल ठीक है। She did not go to school yesterday या yesterday she did not go to school या didn't भी लगा सकते हैं आप। ठीक है। Perfect. क्लियर है आपको, समझ में आ रहा है? और यदि आपको प्रश्न पूछना है तो कौन सा शब्द पहले स्थान पे आ जाएगा नीलम जी, बताइए। With which word would you make a question? Did. परफेक्ट, डिड। जिस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट में डू या डस से हमारा प्रश्न बना करता था, उसी प्रकार से हमारा सिंपल पास्ट में प्रश्न बनेगा डिड के साथ। सो बिना आपको एक बार दिखाए सिखाए आपसे खुद ही सवाल पूछ लेता हूं फटाफट से सीधे। तुमने बोला, कल तुमने कुछ बोला? नीलम जी आप ट्राई कीजिए। To speak yesterday. वंस अगेन, डिड। Did you speak yesterday? एग्जैक्टली, डिड यू स्पीक यस्टरडे, कल तुमने बोला या कल तुमने कुछ कहा, डिड यू से समथिंग यस्टरडे, कल तुमने उसको कुछ कहा क्या? उसका मूड कैसे खराब है? डिड यू से समथिंग टू हर यस्टरडे, डिड यू से समथिंग टू हर यस्टरडे, राइट, कल तुमने उसको कुछ कहा। ओके तो आपने जवाब दिया धीर जी, नहीं कल मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने उसको कुछ नहीं कहा। हाँ No, I didn't. मैंने कल उसको कुछ नहीं कहा। Say nothing yesterday. ओके राइट, हाँ, नो I didn't. I didn't say dash dash to her yesterday. Yesterday. हाँ डैश डैश में भरिए, नथिंग तो नहीं आएगा क्योंकि नॉट आ गया तो नॉट के साथ नथिंग नहीं जाता। क्या जाएगा? नथिंग सही नहीं है उत्तर, क्योंकि नॉट के बाद नथिंग नहीं आता है। क्या होगा धीर जी? Something. समथिंग तो कुछ हो गया। एनी मोर गेसेस? और लगे यहाँ थिंग तो आएगा डेफिनेटली। Anything? Anything is the right answer. I didn't say anything to her. मैंने उसको कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा मैंने। I didn't say anything to her. Anything. देखिए anything का बहुत सारे मल्टीपल मीनिंग्स हैं। क्या खाओगे? Anything, कुछ भी। क्या खाना चाहोगे? Anything, तब उसमें दूसरा सेंस है। लेकिन जब मैंने उसको कुछ नहीं कहा, so I said I did not say anything to her. I did not say anything to her yesterday. या अगर आप नथिंग कहना चाहेंगे तो फिर ये नॉट हटाना पड़ेगा आपको। I said nothing to her. I said nothing to her. ठीक है? I said nothing to her yesterday.
I said nothing to her yesterday. मैंने कुछ ही नहीं कहा उसको, पता नहीं क्यों बात का बतंगड़ बन रहा है. I said nothing to her yesterday or I didn't say anything to her yesterday. दोनों का मतलब सेम है, right? Okay, let's move ahead. So we saw that whenever you have to make a question, you always start with did. चलिए अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं हम इसके sentences किस प्रकार से बनेंगे. So इस प्रकार से हो जाएगा. क्या उन्होंने कल क्रिकेट खेला? तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, डिड दे प्ले क्रिकेट yesterday? डिड दे प्ले क्रिकेट yesterday? अगर यही प्रश्न आपको नीलम जी कहना होता, क्या उन्होंने कल क्रिकेट नहीं खेला? क्या उन्होंने कल क्रिकेट नहीं खेला क्या? Didn't they play cricket yesterday? Absolutely. Didn't they play या didn't they play cricket yesterday? Didn't they play cricket yesterday? Absolutely, right? Didn't या didn't या did not से आपका प्रश्न बनेगा. ठीक है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इन 5 वाक्यों में हम सारे काम कर लेते हैं ताकि हमें बाकी नहीं करने पड़े. उसने एक नई कार खरीदी. धीर जी बताइए. Did he buy a new car? नहीं, आपको अभी प्रश्न नहीं बनाना, आपको इस वाक्य को अंग्रेजी में बताना है. उसने एक नई कार खरीदी. दिया हुआ भी आपकी सहायता के लिए. He bought a new car. He bought, not bought, he bought a new car. बोलिए. He bought a new car. He bought a new car, very good. उसने एक नई गाड़ी नहीं खरीदी. He didn't buy a new car. Very good. He did not या he didn't buy a new car. नई गाड़ी नहीं है, वो तो सेकेंड हैंड ली है या पुरानी है, जो भी है, राइट? He didn't buy a new car. Okay, आप ही बताइए नीलम, धीर जी, क्या उसने नई गाड़ी खरीदी है? Did he buy a new car? Very good. Did he buy a new car? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. He didn't buy a new car. आपने कहा फिर did he buy a new car? प्रश्नवाचक चिन्ह. उसने नई गाड़ी नहीं खरीदी क्या? उसने नई गाड़ी नहीं खरीदी क्या? कैसे पूछेंगे ये नीर जी? He buy a Didn't he buy a new car? Absolutely. Didn't he buy a new car? हमें तो लग रहा था नई गाड़ी खरीदी है. Didn't he buy a new car? Didn't he buy a new car? हमें लगा उसने नई गाड़ी खरीदी है, या मैं कंफर्म कर रहा हूँ किसी ने कहा उसने सेकंड हैंड ली है. अरे, didn't he buy a new car? Did not he buy a new car? Because we thought that he was buying a new car. वो एक नई गाड़ी खरीदने वाला था, खरीद रहा था. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नीलम जी, इसको आप पहले पढ़ दीजिए. वे पिछली गर्मियों में गोवा गए थे या गए, दोनों काम कर जाएगा, बताइए. Traveled to Goa last summer. बिल्कुल ठीक है. दे ट्रैवल टू गोवा लास्ट समर. इसका नेगेटिव बताइए. They didn't travel to Goa last summer. Yeah, they didn't travel to Goa last summer. They did not travel to Goa last summer. They didn't travel to Goa last summer. ठीक है. क्या वो या हाँ, Did they travel to Goa last summer? वेरी गुड. प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या वो पिछली गर्मियों में गोवा गए? Did they travel to Goa last summer? और पिछली गर्मियों में गोवा नहीं गए क्या? या बताइए नीलम जी. Didn't they travel to Goa last summer? Exactly. Didn't they travel to Goa last summer? Didn't they travel to Goa last summer? समझ में आता है? आप लिख लेंगे. ठीक है, इसका ऑडियो या वीडियो सुन लीजिएगा वापस से. ओके, मैंने अपना काम खत्म करा. धीर जी. I finished my homework. ठीक है. नेगेटिव. I didn't finish my homework. राइट. पॉजिटिव क्वेश्चन. Did he finish? Did I finish my homework? राइट. Didn't I finish my homework? Absolutely. I finished my homework. I didn't finish my homework. Did I finish my homework? Didn't I finish my homework? Exactly. ये सारे तरीके हैं अपनी बात रखने के. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. Okay, moving ahead with the next one. All right, so I can see Deepmala ji has joined. Deepmala ji, right now we are focusing on simple past. I'll quickly greet you. How are you doing? Good morning. Sir, good morning. I'm well. And you? I'm perfectly fine. Thank you for asking. So we were talking about simple past. I'm sure you have missed a little portion of it, but not to worry at all. You can go back to this recorded version of the class and you can watch it. I'll just quickly give you an idea that in this tense, we use the second form. If you remember the list of ours, it said to drink is the verb, then you had drink, and then drank, drunk, and drinking. So when we talk about the second form, it is the one that you have to use for this form, which is simple past.
सो आई ड्रैंक, आई डिड ड्रिंक। फिर हमने ये भी देखा था कि हम ड्रैंक के पहले डिड लगाएंगे दीपाला जी, तो हम फिर से ड्रिंक पे पहुंच जाते हैं। आई डिड ड्रिंक, राइट। आई डिड ड्रिंक सम जूस। किसने पूछा तुमने जूस नहीं पिया? यस, आई ड्रैंक सम जूस। नहीं नहीं, पक्का बोलो। ऑफ कोर्स आई डिड ड्रिंक सम जूस। तो हम डिड लगा के उस बात को और पुख्ता करते हैं, मजबूत करते हैं, और फिर उस केस में हम वापस से क्या लगाते हैं? प्रेजेंट फॉर्म यानी ओरिजिनल फॉर्म यानी इन्फिनेटिव फॉर्म। आई डिड ड्रिंक, तो आप आई ड्रैंक बोलें, अन्यथा आप आई डिड ड्रिंक बोलें, दोनों का एक ही मतलब है। क्लियर है दीपमाला जी? ये वही बात है जो हमने सिंपल प्रेजेंट में सीखी थी। आई ईट, आई डू ईट। जो डू है वो थोड़ा सा स्ट्रेस देने के लिए, बिल्कुल खाया, मैंने खाया, राइट। आई डू ईट, मैं खाता हूँ, नॉट मैंने खाया बट मैं खाता हूँ, आई डू ईट। चलिए, ये जो डिड हम जब पॉजिटिव में लगाते हैं तो हमारे को काम में बहुत आसानी हो जाती है, बिकॉज ना केवल ये नेगेटिव बनाने में हमें आसानी देता है, बल्कि हमें प्रश्न बनाने में भी आसानी देता है। बिकॉज व्हेन यू से समथिंग इन नेगेटिव, लेट्स क्विकली चेक विद धीर जी फर्स्ट सो दैट दीपमाला जी कैन प्रैक्टिस इट। सो हाउ डू यू से दिस वन धीर जी? मैंने अपना काम नहीं किया। I did not do my homework. Exactly, I did not do my homework, I didn't do my homework, right? राइट इसमें क्या हुआ कि जब इन्होंने डिड लगाया दीपमाला जी, तो इन्होंने फिर से डू कर दिया, डन नहीं, इन्होंने आई थिंक डिड नहीं लगाया, क्योंकि आई डिड नहीं आएगा फिर, राइट? क्योंकि आई डिड तो मैंने किया, आई डिड, बट आई डिडंट डू। फिर इसमें क्या हुआ, जब डिड लगाया तो इन्होंने फिर टू डू को ओरिजिनल फॉर्म में यानी डू में लगाया। क्लियर है? एक और ट्राई कर लेते हैं। नीलम जी आप ट्राई कीजिए। डिड यू स्पीक? क्या आपने बात करी? तो आपने कहा मैंने बात नहीं करी। डिड यू स्पीक नीलम जी? Didn't speak. हाँ, नो आई डिडंट स्पीक, आई डिडंट स्पीक, आई डिड नॉट स्पीक। तो हमने क्या देखा दीपमाला जी? डिड नॉट यूज करने के चक्कर में या डिड यूज करने के चक्कर में हमको आपस में स्पीक पे आना पड़ा। ये क्लियर है आपको? राइट। और यदि प्रश्न बनाना होगा तो हमें डिड से प्रश्न बनाना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूँ, दीपमाला जी आप ट्राई कीजिएगा। दीपमाला जी, डिड यू गो टू मार्केट yesterday? डिड यू गो टू मार्केट yesterday? Yes, I went to the market yesterday. Absolutely, yes, I went to the market yesterday. अन्यथा, yes, I did not go to the market yesterday. ठीक है, आपने उसका नेचर बदल दिया उत्तर का, लेकिन उसी उत्तर को रखते हैं हम। आई डिड नॉट गो टू द मार्केट yesterday की जगह पॉजिटिव रखते हैं दीपमाला जी। तो आपके पास पहला ऑप्शन था जो आपने कहा, yes, I went to the market yesterday, अन्यथा yes, I did go to the market yesterday। ठीक है? या फिर तीसरा हो सकता है बहुत सिंपली, yes, I did, yes, I did। ठीक है, ये भी उत्तर सही है, बिल्कुल सिंपल सा उत्तर है। तो यहां पे हम देखेंगे, चलिए यहाँ पे अभी हमें धीर जी ने बताया, इसका पॉजिटिव दिया हुआ है, आई फिनिश्ड माय होमवर्क, आई डिड नॉट फिनिश माय होमवर्क। जब डिड नॉट लगाएंगे, हम डिड लगाएंगे, आई एम सॉरी, डिड नॉट लगाएंगे तो हम यहाँ पे इसको फिनिश कर देंगे, आई डिड नॉट फिनिश माय होमवर्क। और प्रश्न है, क्या मैंने अपना होमवर्क पूरा किया? डिड आई फिनिश माय होमवर्क? मुझे याद नहीं आ रहा, डिड आई फिनिश माय होमवर्क? मैंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया क्या? डिडंट आई फिनिश माय होमवर्क, डिड नॉट आई फिनिश माय होमवर्क, डिडंट आई फिनिश माय होमवर्क, राइट? तीनों ऑप्शंस सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपमाला जी, इफ यू आर कंफर्टेबल, कुड यू हेल्प अस विद दिस वन? हमने शादी समारोह में भाग लिया। We attended the wedding ceremony. ठीक है, ये पॉजिटिव आपने बोल दिया, लिखा हुआ भी था, समझ में भी आपको आ गया। वी अटेंडेड द वेडिंग सेरेमनी, हमने वेडिंग सेरेमनी अटेंड नहीं करी। We did not attend the wedding ceremony. We did not attend the wedding ceremony. We didn't attend the wedding ceremony. We didn't attend the wedding ceremony. अब प्रश्न पूछिए आप दीपमाला जी, क्या हमने वेडिंग सेरेमनी अटेंड करी? Did we attend the wedding ceremony? वेरी गुड। क्या हमने वेडिंग सेरेमनी अटेंड नहीं करी? Did we not attend the wedding ceremony? Absolutely. Did we not attend the wedding ceremony? अन्यथा didn't we attend the wedding ceremony या didn't we attend the wedding ceremony? क्लियर है सभी को? Did we not, right? Did we not हो जाएगा। चलिए एक और लास्ट ट्राई करते हैं। आप बताइए नीलम जी इसका। She watched the movie last night. She did not watch the movie last night. Right. Did she watch the movie last night? Didn't she watch the movie last night? Perfect. Absolutely correct. She watched the movie last night. She didn't watch the movie last night. या she did not watch the movie last night. या she didn't watch the movie last night. प्रश्न बन जाएगा,
डिड शी वॉच द मूवी लास्ट नाइट, राइट? और नेगेटिव में डिड शी नॉट वॉच द मूवी लास्ट नाइट, या डिडंट शी वॉच द मूवी लास्ट नाइट, या डिडंट शी वॉच द मूवी लास्ट नाइट। क्लियर है? इसमें थोड़ा सा आप काम करेंगे तो आपको इजी लगेगा। ओके, कुछ सेंटेंसेस मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आई डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट टुडे, मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया। दे डिड नॉट विन द मैच, वो मैच में नहीं जीते या उन्होंने मैच नहीं जीता। शी डिड नॉट राइट द लेटर, उसने पत्र नहीं लिखा। वी डिड नॉट विजिट द पार्क यस्टरडे, हम कल पार्क नहीं गए। ही डिड नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, उसने समय पे अपना प्रोजेक्ट खत्म नहीं किया। डिड यू फिनिश द बुक, आपने किताब पूरी कर ली, निपटा ली, पढ़ ली, देख ली, जो भी आपको करना था। डिड दे कम टू द पार्टी, क्या वो पार्टी में आए। डिड शी कॉल यू येस्टरडे, क्या उसने कल तुम्हें कॉल किया। चलिए आंसर सुनते हैं आपसे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, फटाफट से। आप बताइए पहले, धीर जी, डिड यू फिनिश द बुक? Yes, I finished the book. ओके, नेगेटिव? I didn't finish the book. परफेक्ट, लेकिन आप पहले नो लगा दीजिए। नो आई डिडंट फिनिश द बुक। No, I didn't finish the book. Didn't I finish the book? या नहीं, आपको सिर्फ इसी के उत्तर देने हैं ना, प्रश्न था, आपसे पूछा था इसलिए। तो आपको जवाब देना था हाँ या ना में, तो आपने कहा यस आई फिनिश द बुक, अन्यथा नो आई डिडंट फिनिश द बुक, राइट? आई डिडंट फिनिश द बुक, मैंने बुक फिनिश नहीं की। ओके, आप बताइए नीलम जी, इन लोगों के लिए प्रश्न आपसे, आपको इन लोगों के बिहाफ पे उत्तर देना हाँ या ना में। डिड दे कम टू द पार्टी? नीलम जी अनम्यूट करके बताइए, डिड दे कम टू द पार्टी? No, they did not come to the party. Perfect. No, they did not come to the party. They didn't come to the party. Yeah, they didn't come to the party. और हाँ में जवाब देते तो आप क्या बोलते हैं नीलम जी? Yes, they did come to the party. Absolutely, they did come to the party. They came to the party. They did. खत्म। ठीक है? चलिए आप ट्राई कीजिए दीपमाला जी। Did she call you yesterday? Did she call you yesterday? Yes, she called me yesterday. Yes, she did call me yesterday. And no, she didn't call me yesterday. ओके, चलिए ठीक है। काफी सारे आंसर्स हैं, हम हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं, तो डोंट वरी। आपका फिर से एक बार पहला आंसर सुनता हूं दीपमाला जी। यस में आपने क्या जवाब दिया? हाँ, क्या क्या जवाब दिया आपने? यस। Yes, she called me yesterday. चलिए, शी कॉल्ड मी येस्टरडे, वाई लिख देता हूँ, येस्टरडे का स्मॉल में वाई लिख देते हैं। चलिए, और क्या ऑप्शन हो सकते हैं यस के? Yes, she did call me yesterday. या फिर यस शी डिड, यस शी डिड। Yes. ठीक है, यहाँ पे भी कहानी खत्म हो सकती है दीपमाला जी। और अगर ना में आप उत्तर देते तो क्या क्या उत्तर देते दीपमाला जी? नो, Yes. No, she didn't call me yesterday. ठीक है, शी डिडंट कॉल मी येस्टरडे, या फिर नो शी डिड नॉट, शी डिड नॉट, बस यही होगा। शी डिड नॉट या शी डिड नॉट कॉल मी, दोनों चल जाएंगे, राइट? सो उच्चारण में फर्क हो सकता है, शी डिडंट या शी डिडंट, या फिर शी डिड नॉट, बाकी सब सेम है, राइट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमने देखा है सिंपल पास्ट। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए मैं सेंटेंसेस छोड़ के जा रहा हूं इस स्क्रीन के ऊपर। आपको ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हमने भेज दिया है, मैं फिर से आज वाला डॉक्यूमेंट भेजूंगा, इनको आप पढ़िएगा अच्छे से, इन्हीं के साथ आपको आगे बढ़ना है। अब हम आज का जो लास्ट टेंस है वो देखते हैं। लास्ट टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। क्या लगता है आपको इसमें धीर जी, क्या सेंस है इसका, क्या कहना चाह रहे हैं हम? पास्ट कंटिन्यूअस, व्हाट डज दैट मीन? पास्ट कंटिन्यूअस क्या कहना चाह रहे हैं हम? मतलब बहुत पहले से काम चल रहा है, फिनिश मतलब। हाँ, कंटिन्यूअस है, चल रहा है, लेकिन कहाँ चल रहा है? वर्तमान तक नहीं आया है, वो पास्ट में चल रहा था। मैं कल, हाँ, पर फिनिश हुआ नहीं हुआ हमें नहीं पता। मैं कल टीवी देख रहा था, वो खाना बना रही थी, हम कपड़े धो रहे थे, कुछ हो रहा था, राइट? बट डिड दैट गेट ओवर? वी डोंट नो. Did it finish itself? We have no idea about it. But the time when I saw it, it was happening. वो हो रहा था. We have no idea if it got over or not. वो हमें नहीं पता. तो बड़ा आसान है, क्या करना है आपको? Was और were लगाना है
और कंटिन्यूस है तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे? ing, राइट? आपको याद है ing वाले फॉर्म? singing and dancing and speaking and listening and throwing and eating, whatever you have to use. So, और इसके साथ सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस was verb प्लस ing. तो मैं किताब पढ़ रहा था, कैसे बोलेंगे दीपमाला जी? I was reading a book. वेरी गुड. और आपको ये कहना हो नीलम जी मैं किताब नहीं पढ़ रही थी. I was not reading a book. I was not reading a book, जिसको हम ये भी कह सकते हैं I wasn't, right? I wasn't reading a book, ये भी हो सकता है, right? ये हो गया हमारा नेगेटिव में. और प्रश्न बनाना हो तो धीर जी आप बता सकते हैं प्रश्न बनाएंगे कैसे? क्या मैं किताब पढ़ रही थी? Was I reading a book? वेरी गुड. Was I reading a book? क्या मैं किताब पढ़ रही थी? Was I reading a book? परफेक्ट, राइट? तो बड़ी अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया कि कैसे हम इसका अफर्मेटिव पॉजिटिव बनाते हैं, कैसे हम इसका नेगेटिव बनाते हैं और कैसे हम इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं, राइट? ये आपको समझ में आ गया. आगे बढ़ते हैं हम लोग. यहां देख लेते हैं ये जो सेंटेंस होते हैं, वह सो रहा था, हम खा रहे थे, ये कभी भी आइसोलेशन में बोले जाते हैं तो बड़े अटपटे लगते हैं. जैसे मैं टीवी देख रहा था. कब, किस समय की बात बता रहे हो? क्यों ये बात बोल रहे हो? जब तुम घर आए तब मैं टीवी देख रहा था. वो पढ़ाई कर रही थी. कब? जब घंटी बजी तब वो पढ़ाई कर रही थी. ये हमेशा इस कॉम्बिनेशन के साथ जाता है, अदरवाइज इनका सेंस इतना रेलेवेंस नहीं रखता है, इतनी रेलेवेंस नहीं रखता है, राइट? सो आप ट्राई कीजिए नीलम जी, इस वाक्य को पढ़ दीजिए एक बार. जब मैं पहुंचा तब वह सो नहीं रही थी. She was not sleeping when I arrived. Absolutely. She was not sleeping when I arrived. She wasn't sleeping when I arrived. तो हमने क्या देखा इसमें? एक एक्शन जो ing वाला है वो हमारा पास्ट कंटिन्यूस है, और उसके साथ when लगकर जो दूसरा एक्शन आता है वो कौन से टेंस में? Anyone? I arrived. कौन सा टेंस है ये? Second form. सेकेंड फॉर्म. Past tense. हाँ, कौन सा पास्ट? पास्ट के खूब सारे नाम है. पास्ट कंटिन्यूस है कि Past present. Past present. Sorry, past simple. हाँ, आपने तो नया ही कोई टेंस इजाद कर दिया, पास्ट प्रेजेंट. इसका आप थोड़ा विस्तार में बताइएगा, ये कौन सा एक हालात होता है जब आदमी पास्ट और प्रेजेंट दोनों में होता है? ये तो हमारे आपने इंसान की मानसिक स्थिति बता दी कि हम हमेशा जीवन में पास्ट और प्रेजेंट में ही चलते रहते हैं. सो दैट्स ट्रू. बाकी इट इज सिंपल पास्ट, राइट? सिंपल पास्ट, एब्सोल्युटली सिंपल पास्ट, जिसके अंदर आपने सही कहा था नीलम जी की सेकंड फॉर्म हम काम में लेते हैं. परफेक्ट, राइट? सो सेकंड फॉर्म के साथ आईएनजी का ज्यादा कॉम्बिनेशन सेंसिबल होता है. उदाहरण के लिए चलिए आप ट्राई कीजिए धीर जी. मैं पढ़ रही थी जब घंटी बजी. मैं I was studying हाँ, आई वॉज स्टडिंग. when I was STUDYING. I was studying when the bell, और बजना, घंटी बजना. हाँ, when the ring होता है वर्ब, क्रिया हमारी रिंग है, तो क्या बताएंगे? rang. Rang, ring, rang, rung, ringing, right? Drink, drank, drunk, drinking. ये थोड़ी बहुत ध्वनियां मैच करती है, इससे बड़ा आसान है इनको पकड़ना. When the bell rang, when the bell rang, जब घंटी बजी तब मैं पढ़ रही थी. चलिए एक और ट्राई करते हैं दीपमाला जी. जब मैं ओके जब मैं बाजार पहुंची तब बारिश हो रही थी. It was raining when I went to the market. It was raining when I, जब मैं बाजार गई नहीं, जब मैं बाजार पहुंची. When I arrived, Yeah, when I reached at the market. हाँ वो भी ठीक है, when I arrived भी ठीक है, बिल्कुल सही है. When I reached at the market. अब आप कह सकते हो कि इसमें क्या गलत है जब मैंने कहा कि it was raining when I went to the market? गलत नहीं है, इसमें सेंस में थोड़ा सा फर्क है. आप जब गए, जब निकले ना घर से तब बारिश हो रही थी, और इसमें है कि जब मैं पहुंची तब बारिश हो रही थी. आप समझ गए? तो ये थोड़ा सा फर्क है. एक तो निकलने की बात है when I went, जब मैं बाजार के लिए I went, मैं निकली, मैं गई. गई का मतलब ये नहीं कि मैं पहुंच गई, जाने का मतलब क्या निकल गए हैं.
बट पहुंचने पे बारिश हो रही थी, दैट विल बी शोन बाय व्हेन आई रीच्ड एट द मार्केट और व्हेन आई अराइव्ड एट द मार्केट. क्लियर है? सॉरी बताइए. Sir, I'm confused. These at these two go to और go तो टू ही लेगा. ओके, सो एट और टू में बहुत सिंपल सा इसकी अंडरस्टैंडिंग है. व्हेन यू अराइव, व्हेन यू रीच्ड टू द मार्केट और एट द मार्केट, व्हेन यू से एट, यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट दैट एज अ स्टैटिक प्लेस, राइट? एक प्लेस है, आप वहां पे पहुंच गए, उस तक यू हैव रीच्ड एट. लेकिन टू मीन्स कि यू हैव रीच्ड, वो आपका एक डेस्टिनेशन था. एंड जनरली वी एक्सप्लेन इट इन द सेंस दैट यू हैव, आई रीच्ड टू द मार्केट. So when you say reached, इसमें बहुत subtle सा फर्क है. Let me give you a picturization of the same. It will be easier for you to understand. So when you say it was raining when I reached at the market, and when you say it was raining when I reached to the market. So when you say to का मतलब ये है कि आप उसको as a place ले रहे हैं कि एक पूरा की पूरी entity है और आप वहां पे पहुंच गए. और at क्या है कि सिर्फ आपको ये बता रहा है कि आप उसमें सिर्फ टच हुए हैं. You haven't actually moved inside the market. At shows just the beginning. At, right? And to is like you have now things to move ahead with. So to में क्या होता है कि एक larger space होता है आगे बढ़ने का, और at just आप touch करते हैं at, you know. So I hope you understand. Whenever you are at shows a static position. आप वहाँ पे पहुँच गए, बस आपका क्षणिक अड़ना हुआ और हो गया. I reached at the market. I reached to the market, which means now you can open up and you can move ahead. To gives you this possibility of moving ahead in that direction. To, that's how we say, right? So I reached at the school. I reached to the school. So I reached at the school, बस मैं वहां पहुंच गई. क्षणिक है, बहुत ही मोमेंट्री है. आपने पैर रखा और मैं I reached. But when I reached to the school, then the thing starts to expand in that direction. I hope that's clear. क्योंकि बहुत ही subtle difference है. हिंदी में इसमें कोई फर्क नहीं है, अंग्रेजी में at और to. So at पहुंच गई मतलब वहां पे आपने कदम रखा. At I am at the school, यानी वो आपकी पोजीशन बताता है कि आप पहुंच गए. और जब आप कहते हैं I reached to the market, now you would start to do something. I reached to the market, that way, right? It gives you a bigger picture to move ahead and to do whatever you want to do. All right, so that's a subtle difference between at and to. Okay, we'll move ahead now. If you were to use one more sentence, चलिए एक और देखते हैं हम. We'll ask Neelam ji. So if you were to say when I was on phone. When the door, okay, so मैं फोन पे बात कर रही थी जब तुम घर आए. मैं फोन पे बात कर रही थी जब तुम घर आए. You'll have to unmute, yeah. I was telephoning when you came. Okay, I was telephoning. आपने बड़ा interestingly आपने to telephone का ही verb बना दिया, which is good. So I was talking on the phone. I was talking on the phone when you arrived. Yeah, when you came, right? I've not seen much of to telephone. To telephone आप क्रिया के रूप में बोल सकते हैं. ऐसा कोई बंदिश नहीं है कि आप अपनी नई क्रियाएं नहीं बना सकते. आप बना सकते हैं, but then I have heard it very less that people would say, oh, I was telephoning. You can say so. I was telephoning when you arrived, but it would be better if you said I was talking on the phone when you arrived, right? To telephone it does make sense, but we have other options as well. चलिए आगे बढ़ते हैं हम. देखिए इस प्रकार के वाक्य. So इसी में हम एक काम करते हैं, सारे सेंटेंसेस बनाने का प्रयास करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, और इसके साथ हम प्रश्न भी बनाते हैं. चलिए धीर जी आपसे चालू करते हैं. जब मैंने कॉल किया तब वह टीवी देख रहा था. He was watching TV when I called. नेगेटिव. He wasn't watching TV when I called. वेरी गुड. पॉजिटिव क्वेश्चन. Wasn't he watching TV when I called? हाँ आपने नेगेटिव वाला कर दिया, पर ठीक है. Wasn't he watching television when I called? Was he watching TV when I called? वेरी गुड. Was he watching TV? क्या वो टीवी देख रहा था जब मैंने कॉल किया? तो उठा क्यों नहीं रहा था इस वजह से. So was he watching TV when I called? Exactly. चलिए दीपमाला जी आप ट्राई कीजिए. हाँ सेकंड वाले को पढ़ दीजिए और फिर इसका नेगेटिव बनाइए, फिर इसका प्रश्न बनाइए पॉजिटिव में, फिर इसका प्रश्न बनाइए नेगेटिव में. They were having dinner at 8 p.m. Right. They were not having dinner at 8 p.m. Were they having dinner at 8 p.m.? Right. And Were they not having dinner at 8 p.m.? yes, Right. Were they not? Weren't they? जो were they not को weren't they भी बोलते हैं. WERENT.
weren't, right? Weren't they having dinner at 8 p.m. Perfect. चलिए आप ट्राई कीजिए नीलम जी नेक्स्ट वाला. I was studying for the exam. I was not studying for the exam. Was I studying for the exam? Wasn't I studying for the exam? ओके परफेक्ट, एकदम सही पढ़ा. इस शब्द का थोड़ा उच्चारण एक बार फिर से करके बताइए मुझे आप नीलम जी. Exam. हाँ एग्जाम, एग्जाम राइट, एग्जाम. सो और एक और चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा, जब कभी भी हमारा शब्द वोवल से चालू हो और उसके पहले द हो, THE द, तो वो दी बन जाता है. दी उसकी ध्वनि होती है दी एंड नॉट द. तो आप इसको बेहतर आप बोलिए आई वॉज स्टडिंग फॉर द एग्जाम, आई वॉजंट स्टडिंग फॉर द एग्जाम, वॉज आई स्टडिंग फॉर द एग्जाम, वॉजंट आई स्टडिंग फॉर द एग्जाम. राइट, इस प्रकार से ये रूल है. हालांकि आप अगर द एग्जाम भी बोलते हैं तो भी कोई बहुत बड़ी कोई गलती नहीं है. यू कैन ऑलवेज से इट द एग्जाम, बट द ग्रामर रूल सेज दैट व्हेनेवर देयर इज अ वोवल स्टार्टिंग वर्ड एंड इट इज प्रीसीडेड बाय the, it becomes the in sound, right? The exam, right? The only problem, जो इकलौती समस्या है, the only problem, because the only ONLY O से चालू है इसलिए. चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं कुछ और वाक्य. I was not listening to music, they were not playing outside, she was not working on the assignment. ये सारे हमारे जो है continuous tense हैं जो हम देख चुके हैं. चलिए तो ये मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ. आपको इस PDF को पढ़ना है, समझना है और देखना है कि क्या क्या इनके मीनिंग है. और फिर आपको कल की क्लास में हम एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसमें मैं चाहूंगा आप लोग अब इतने जो टेंसेस सीख चुके हैं, 4 तो सीख ही चुके हैं जिसमें आपने सीख लिया है व्हाट हैव यू लर्नड. यू हैव लर्नड सिंपल प्रेजेंट, यू हैव लर्नड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यू हैव लर्नड सिंपल पास्ट एंड यू हैव लर्नड पास्ट कंटिन्यूअस एंड यू हैव आल्सो लर्नड प्रेजेंट परफेक्ट. आई हैव ईटन, राइट. 5 सीख चुके हैं आप. तो इन पांचों को ध्यान में रखते हुए आपको कल एक चर्चा करनी है और उसका टॉपिक है Why is it necessary to learn English? अंग्रेजी सीखना क्यों आवश्यक है. इस पे आप चर्चा करेंगे, अपना अनुभव बताएंगे, अपनी बातें बताएंगे और प्रयास करेंगे कि आप सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट नाम के जो टेंसेस है उनका प्रयोग करें, उनको काम में लें और अपनी बात को रखें. और फिर मैं क्रॉस क्वेश्चन जरूर आपसे करूंगा ताकि आप ऑन द स्पॉट कैसे जवाब देते हैं इस पे भी हम चर्चा करेंगे. इज दैट ओके? ऑल सेट? सो टुमारो इज गोइंग टू बी आवर 8th day, so we are nearing towards the end of our session, so I would really want that you people start speaking and expressing yourself in English now. So कल काफी सारी चर्चा करेंगे, काफी कुछ बोलेंगे, right? आपकी तरफ से काफी कुछ मुझे सुनने को मिलना चाहिए. So I would drop a message in the group that everyone please be active and do speak, because the more you speak the better you become, and that's how it moves ahead. All right, any questions from your side, Neelam ji, Dheer ji, Deepmala ji? Is that all Yes, clear? sir. No questions? Yes. Or you do have? Sir, yesterday I did some homework Okay. and there was a problem with me. Tell me. The sentence driving to, I'm driving to, she's not driving. I think what was the sentence? I am not remembering, but Okay. there was driving to. What does it mean? Driving to? She was driving to. It was the She was sentence like she was driving to the market. She was She's not driving to the office. हाँ she's not It was driving. like- हाँ absolutely. So when you called me, जब आपने मुझे फोन किया, I was driving to the office. यानी मैं ऑफिस की दिशा में ड्राइव कर रहा था. Okay. Right? makes sense. या एंड जो टू है, आई विल ऑल्सो टेल यू कि जो एट है वो स्टैटिक होता है, बट टू हमें एक दिशा देता है. जिसमें मैंने आपको कहा कि अब आपके पास दिशा है, यू हैव टू मूव अहेड इन दैट डायरेक्शन, राइट? सो टू इज ऑल्सो अ डायरेक्शन एंड एट इज अ स्टैटिक पोजिशन. सो दैट्स ऑल्सो ट्रू कि आप टू और एट को इस प्रकार से भी समझते हैं कई बार. सो व्हेन यू से व्हेन यू कॉल्ड मी यस्टरडे, आई वाज ड्राइविंग टू माय वर्क. आई वाज ड्राइविंग टू माय वर्क का मतलब है मैं अपने कार्य की दिशा में गाड़ी चला रहा था. ये इसका शाब्दिक अनुवाद है जो आपको ऐसा नहीं करना, बट आई वाज ड्राइविंग टू माय वर्क. मैं ऑफिस जा रहा था, आसान शब्दों में, या जा रही थी. But if we say I was going to the office. हाँ आई वॉज गोइंग. देखिए गोइंग ठीक है, लेकिन गोइंग से नहीं पता चल रहा दीपमाला जी कि आप गाड़ी चला रहे थे, नहीं चला रहे थे, कैसे जा रहे थे आप. Oh, तो वो
इतने सारे शब्दों को काम में लेने के बजाय कि आई वॉज गोइंग टू माई ऑफिस इन माई कार, यू वुड सिंपली से आई वॉज ड्राइविंग टू माई वर्क, राइट? सो ये इजी तरीका है, यही तो हम करते हैं अंग्रेजी में। जैसे जैसे हम पारंगत होते हैं, आगे आगे और बढ़ते हैं, तो हमको पता है कि कम शब्दों में अपनी बात कैसे सटीक तरीके से हम रख पाएं। दैट्स व्हाट द होल प्रोसेस इज, राइट? चलिए, so with that I wish you a great day ahead. Take care of yourself and see you tomorrow with a lot of discussion on the topic that reads, why is it necessary to learn English? And I like to listen a lot from you कि आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं, क्यों सीखना चाहेंगे आगे भी, और वो कैसे आपको फायदा पहुंचाएगी इन सभी टेंसेस के साथ, right? Okay, thank you. See you tomorrow. Bye bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you.